Hello everyone, welcome back to our channel. This is me, Iman, and Mozam. And you are watching News, views and updates. और आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं या रिएक्शन देने जा रहे हैं इंडिया पर नहीं बल्कि बांग्लादेश पर। पाकिस्तान और बांग्लादेश में विच कंट्री इज बेटर। और डेफिनेटली वैसे तो सबको अपने अपने कंट्रीज बहुत पसंद है, लेकिन हर जगह पर अच्छी बुरी चीजें तो होती रहती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम लोगों को ओपन माइंड के साथ वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और उस पर डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज करें। हाँ, क्रिटिसाइज करें या उनको डिफेंड करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को वीडियो देख लेनी चाहिए और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे विच कंट्री इज बेटर। एंड आप भी बताइएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। Bangladesh and Pakistan at one point used to be linked together by a big country known as India. And although they are divided because of this big chunk of territory, they are still somewhat brothers. And although both countries have definitely gained their own independence, own voice, and way of doing things, today we are going to look at the general comparisons of these two countries and find out what is different and what is similar. Hey everybody, what's going on? Welcome to FTD Facts, the channel where we talk about people, cultures, and places from all around the world. I'm Dave Walbla, and if you love learning about cultures and you love learning about, militaries and economy and things like that, hit the subscribe button and join us every single day. Hit the bell notification so you can be on top of your game and learn about great things around the world. Now, before we get started in this video, I know some of you guys might be like, well, wait, are you going to compare two countries together? Well, not really. Here, we actually give you guys the statistics, and you guys can decide which country is best for you. And to be honest, it's really a great opportunity to just learn about different countries from around the world. And like I said, we actually even compare militaries of different nations. So if you guys want to find out what the differences of the militaries between Bangladesh and Pakistan are, I'll put a link for that at the end of the video. But now, let's get started, and before I want to know what is your favorite country and why. Let me know down there. So let's start it off. Now, Bangladesh has a population of 162,951,560 people. Now, this ranks 8th in the world, and it is only a 2016 estimate because there hasn't been a census done since 2011. Now, its population density has 1,106 people per kilometer square, ranking 10th in the world, and it has a land size of 147,570 kilometers square, and of that, it has 6.4% water. Now, Pakistan, on the other hand, is a much larger country when it comes to population and land size. First of all, its population sits at 209,970,000 people, ranking 5th in the world with a 2017 census. Now, its population density has 244 people per kilometer square, ranking 56th, and its land size is much bigger at 881,913 kilometers square, and of that, 2.86% of that is water. Now, one thing that we got to look at when it comes to these two countries is we got to look at money. Now, how is money generated in this country, and what kind of money do they use? First of all, Pakistan uses the Pakistan rupee, and for $1 it equals 110.7. And for its dollar, it's remained pretty stable since 2015. Now, Bangladesh uses the Bangladeshi taka, and $1 equals 83.2. However, if you want to compare the two, one BDT equals 1.33 PKR. But let's take a look at money even further. Where does it come from? How is it generated? And are there imports and exports that help create this money? First of all, Pakistan's GDP of purchasing power parity is $1.06 trillion, ranking 25th in the world with a per capita of 5,374. Now, of that, it has exports equaling $20.5 billion. And of that, 15% of that is linen, 8.3% of that is rice, and 7.2% of that is non-knitted men's suits. Now, as for imports, Pakistan imports a lot more than it actually exports. It's crazy. Because its imports equal $45.9 billion, with 12% of that being refined petroleum, 4.3% of that being crude petroleum, and 3.7% of that being palm oil. Now, as for Bangladesh's GDP, it equals $686.598 billion, ranking 3rd in the world with a per capita of 4,207. Now, one thing that's great about Bangladesh is it's very balanced in its imports and exports. For example, its exports come in at $35.7 billion, with 26% of that being non-knitted suits for males and females, 15% of that being knit t-shirts, and 12% of that being knitted sweaters. Now, as for the imports, it pretty much matches it, being $38.3
billion. 6.4% of that is heavy and light pure woven cotton, 3.3% of that is refined petroleum, and 2.6% of that is raw cotton. Now that's great and all. These two countries make money, they do good for imports and exports, but when we actually got to look at these countries, we got to look at the living costs to compare them. Now, if you were to move to Pakistan from Bangladesh, food would be 22% cheaper, housing would be 3% cheaper, unfortunately clothes would be 66% higher, transportation would be 37% lower, personal care also is about 14% lower, and entertainment in Pakistan is approximately 16% lower. Overall, this equates it to being approximately 19% cheaper to live in Pakistan than it is in Bangladesh. However, though, the buck doesn't stop there because we also do have to look at debt. And for this, we are going to look at the debt in US dollars. For Pakistan's US dollar debt, it equals $69,138,086,630, with a per capita of 370 and making up 60% of its GDP. And if you were to actually stack that in single dollar bills, it would equal 7,500 kilometers high, making 0.02 trips to the moon. Now, as for Bangladesh, at least by a 2016 number, the debt in US dollars is approximately $70.874 billion. So what do you think of these two countries? Do you live in one of these? And if so, what is your favorite thing about them? But my name is Dave Walp, and I want to thank you guys for tuning in and learning about Bangladesh and learning about Pakistan, two countries that are just amazingly awesome brothers. Now, before you guys get out of here, make sure you guys leave a comment and a suggestion for a future FTV Facts video down there in the box below. Also, check out our playlists. I'll put something at the end of this video for you guys, especially that military video. Also, guys, if you want more stuff from me, man, you guys... वैसे तो नो डाउट अगर तस्वीरें देखी जाएं गूगल पे या वैसे सर्च की जाए तो बांग्लादेश बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है? हाँ, बहुत प्यारा है। अच्छा, ये क्या है? खूबसूरत ही क्या है? हाँ, क्या ठीक है। नो डाउट पाकिस्तान भी अपनी जगह बहुत प्यारा है, लेकिन बांग्लादेश भी बहुत एक प्यारी जगह घूमने के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर फैक्ट्स एंड फिगर जो बताए गए हैं वीडियो में, अगर उसकी बात की जाए तो पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब है। और हमें पता है कि ये बात फिक्र करने की है, हंसने की नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि देखें, हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी ये बात की थी कि हम लोगों को बायस नहीं होना और हम लोगों को पहले वो क्या से बोलते हैं ओपन माइंड के साथ एक्सेप्ट करनी चीज, हाँ एक्सेप्ट करनी चाहिए ये चीजें। तो एक्चुअली जो वीडियो में दिखाया तो उसके अकॉर्डिंगली तो पाकिस्तान के हालात वाकई में खराब लग रहे हैं। इवन के जो डॉलर की प्राइस बताई है वो तो काफी पुरानी है। हाँ, बताइए, अभी तो और ज्यादा लेट चुका है रुपया। और ये वाकई में बहुत एक फिक्र करने वाली बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी कंट्री के लीडर्स होते हैं उनको फिक्र होनी चाहिए कि हम लोगों ने कुछ करना है, लेकिन जब उन्हीं को फिक्र नहीं है, बस दुआ करें कि हाँ हमारे कंट्री के लिए कोई ऐसा लीडर आ जाए जो कि हमारी कंट्री को आगे लेकर जाए, ना कि पीछे लेकर जाए। और अगर हम मतलब इवन के जो मतलब बांग्लादेश की करेंसी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इतनी स्ट्रांग है कि उसके जो आई थिंक क्या उसका करेंसी का नाम क्या है, बांग्लादेशी रुपया जो है हाँ, वो तकरीबन यानी कि एक रुपया हाँ अच्छा हाँ 1 रुपया वो वहाँ का कुछ इसी तरह टाका मेरा ख्याल है, बांग्लादेशी टाका टाका एग्जैक्टली टाका या टका कुछ इस तरह का नाम है, कंफर्म नहीं मैं पता। तो यानी कि वो तकरीबन 1 रुपये 3-4 पैसे है पाकिस्तानी। यानी कि बांग्लादेश की करेंसी पाकिस्तान से स्ट्रांग है। यस यस, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखें, जिस कंट्री के लोग मेहनत करते हैं वो ऊपर जाते हैं। और ये किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें या हम किसी भी फील्ड में मेहनत करेंगे हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर पाकिस्तान भी करेगा तो डेफिनेटली इसको भी रिवॉर्ड मिलेगा। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं, होप करते हैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत मेहनती लोग हैं, यानी कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बात फिर आ जाती है आपके मुल्क में बेसिक जरूरियात की। नहीं, लेकिन मैं आम लोगों की बात नहीं ना करी। आम लोग तो वाकई बहुत मेहनती, लेकिन लीडर्स नहीं है ना इतने हार्ड वर्क। उन लोगों को सोचना नहीं चाहिए ना कि हमें अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। उन लोगों को ये नहीं सोचना नहीं, वैसे आप गलत करें, लीडर्स बहुत मेहनत करते हैं, करप्शन करने में, पैसा लूटने में बहुत मेहनत करते हैं।
भाई चलो खैर ये तो इतनी इस पर हम डिबेट कर सकते हैं ना कि ये कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर हाँ सिर्फ एक चीज में बेटर था, अगर हम इम्पोर्ट्स की भी बात करें तो उसमें भी बांग्लादेशी कम थी, इतनी ज्यादा कम नहीं थी, लेकिन ये कि पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम थी। और इसके बाद हाँ जो आपका लाइफस्टाइल है वो पाकिस्तान में थैंक गॉड अच्छा चीप है, मतलब कि इतना महंगा नहीं है। इट मीन्स कि बांग्लादेश में महंगा है लाइफस्टाइल, आपका रहने सहने का तरीका। हाँ कपड़े यहाँ पर वाकई में बहुत महंगे हैं, ऑनेस्टली बहुत महंगे हैं। मतलब आप बाहर जाते हो और आपने अगर एक अच्छी शर्ट लेनी है तो आपको 3 to 4,000 इवन 5,000 की यू जस्ट गेट ओनली शर्ट विदाउट शलवार और दुपट्टा, आपको सिर्फ एक शर्ट मिलती है। और शुक्र है लड़कों के इतने महंगे नहीं है। हाँ लड़कियों के तो मतलब बहुत ही महंगे कपड़े हैं। और उसके अलावा अगर टूरिज्म की बात की जाए तो बांग्लादेश जो है वहाँ पे भी काफी टूरिज्म है, पाकिस्तान में भी टूरिज्म है। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, अब काफी यानी कि हालात जब से बेहतर होना शुरू हुए हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान के हालात थोड़े खराब थे, लेकिन अब बहुत बेहतर हो चुके हैं, अब यहाँ पे टूरिज्म भी काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन वैसे बांग्लादेशी टूरिज्म के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। और वहाँ पे है टूरिज्म, जैसे कि आपने बोला ना कि गूगल पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा पिक्चर्स सी हैं, मतलब आपको बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स हैं। मेरा कभी इस तरह का चांस नहीं होगा मैंने बांग्लादेश गूगल पर भी विजिट किया हो। अगर बात की जाए माजी की, थोड़ी अगर बात की जाए तो ठीक है, दोनों कंट्रीज को लेके कुछ कंट्रोवर्सीज थी, कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हुई ये सारी यानी कि दूरियां पैदा हुई। लेकिन हाँ वो पॉलिटिकल वो भी जो आम लोगों की बात करें ना, मैं हमेशा अपनी वीडियो पर ये बात करती हूँ, देखिए पॉलिटिकल बातें हम और रिलीजियस बातें करने के लिए हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाते, हम यहाँ पर बनाते हैं एक दूसरे के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाने के, बिकॉज आवर वीडियोस इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल मैं वही बात करने लगा था ना कि वो जो चीजें हुई वो पॉलिटिकल लेवल पे हुई, लेकिन अगर अभी भी अवाम की बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक के व्यूज तकरीबन पाकिस्तानी ज्यादा जानते हैं और बांग्लादेशी कम ही शायद जानते हो पाकिस्तान के बारे में। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि बल्कि पाकिस्तानी भी बहुत कुछ नहीं जानते, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरेटिवली दे नो मोर अबाउट इंडिया। अगर हम देखें पाकिस्तानी तो वो बांग्लादेश के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। इंडिया बिल्कुल साथ आ जाता है ना, बांग्लादेश कोई 1600 मील के फासले पर है। हाँ लेकिन मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि अगर लेकिन इस वीडियो में ये कन्फेस करना चाहूंगी कि मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने तमाम उन फ्रेंड्स का हु आर फ्रॉम बांग्लादेश फॉर योर इनॉर्मस लव। ऑनेस्टली वी डिडंट एक्सपेक्ट इट, लेकिन वी गेट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम योर साइड एंड इंशाल्लाह वी विल मेक मोर वीडियोस और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहें ताकि हम मजीद वीडियोस बनाते रहें। बिल्कुल, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। और जल्दी हैं जल्दी चले दे दें इजाजत अब। ओके फाइन। इसी के साथ हमें दें इजाजत और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर with your friends and family and keep us in your prayers. Till then, goodbye.